Hello students, today we will study chapter 1 of class 11th physics, that is physical world. हमारे आसपास के होने वाले नेचुरल प्रोसेस को एक साइंटिस्ट किस तरह से देखता है और स्टडी करता है, we will look at in the physical world chapter. In this video, we will take part 1 of the chapter 1. In that, we will look how to study these natural processes and what are the methods, steps that scientists took to reach the logical conclusion and theory that is acceptable to the world. So students, if you have not subscribed my YouTube channel till now, so please subscribe it. Science. So first of all, I will tell you the theoretical definition of science and we will take it further. So science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control the phenomena. So science is just study of whatever is happening around us and to know more about it. Now why this science comes? This is because of the nature of human being or its curiosity to know what is happening around him and why this is happening. Can he modify it? Can he control it? This gives the birth to the study, to experiment. So we can say science is exploring, experimenting and predicting from what we see around us. So we will take an example like sunrise and sunset. Everybody sees sunrise and sunset daily. Now here the curiosity arises कि why sunrise is happening or sunset is happening, and we are seeing, after observing it, we see that this is happening at particular time. So when we observe that, we started to exploring it and experimenting, and then we finally reach to a conclusion, and even today we can predict after the time of sunrise after even 6 months. So this is how science works. One of the key things about science is that science is ever dynamic, means there is no final theory in the science and no unquestioned authority among scientists. So that means कि whatever the theory has come, it is not final. There is no end to a study. So even if we are studying the sunrise, sunset, we are getting the time right, and still there is lot to learn about this natural process, and this is a continuous process. Students, now we will look at the scientific method. So students, when we are going to study some natural phenomena and try to predict it, so we will go by some steps one by one from first to reaching the final theory. And this is not just helpful in predicting the correct theory, but also helpful in convincing the other scientific community so that your theory and your prediction can be acceptable to the world. So several interrelated steps are involved in scientific method. Some of the most significant steps are as follows. So I will first of all name those steps. First is systematic observation, controlled experiments, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, theoretical prediction, verification or falsification of theories. So students, now I will take one by one and try to explain this. So students, first step is systematic observation. So students, जो हमारे आजू बाजू हो रहा है हम उसको देखते हैं, लेकिन जब एक साइंटिस्ट की तरह से हम उस चीज को देखते हैं, then we are not just observing that phenomena, we also question ourselves कि ये क्यों हो रहा है, what are the reasons behind this. So for example, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया सनराइज और सनसेट, तो सभी आजू बाजू पीपल्स हैं वो वॉच कर रहे हैं सनराइज सनसेट को, लेकिन व्हेन यू लुक एट इट इन अ साइंटिफिक वे, यू ट्राई टू क्वेश्चन व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड यू स्टार्ट टू learn about it. Similarly,
बारिश हो रही है, हम सब उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन देन द क्वेश्चन अराइजेस कि बारिश क्यों हो रही है, कि पानी ऊपर बादल क्यों बनते हैं और ऊपर से बादल से ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें क्यों गिर रही हैं। सिमिलरली जो सबसे फेमस ऑब्जर्वेशन है दैट इज ऑफ न्यूटन, शायद सभी को पता है, सेब का पेड़ से गिरना। सो नाउ सिर्फ सेब ही नहीं, फल वगैरह जो भी फल पेड़ से गिर रहे हैं सब आजू बाजू गिर रहे हैं, लेकिन व्हेन ए साइंटिस्ट स्टार्ट्स टू थिंकिंग कि ये नीचे ही क्यों गिरा, व्हाई इट फॉल्स डाउन, सो ही स्टार्ट्स टू क्वेश्चन, एंड जब क्वेश्चन अराइज करता है वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इट। सो हियर कम्स द सेकंड स्टेप, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जब आप किसी का सॉल्यूशन को की तरफ जाने की कोशिश करते हो तो आप उस नेचुरल फिनोमेना को अपने लेबोरेटरी में करने की या डिपिक्ट करने की कोशिश करते हो। सो दीज आर एक्सपेरिमेंट्स, और आप डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हें करने की कोशिश करते हो। लाइक कि अभी न्यूटन ने सर्च किया कि एक सेब गिर गया, एप्पल हैज फॉलन फ्रॉम द ट्री। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एप्पल इस ऊपर से गिर रहा है या और भी कुछ, तो हम लोगों ने बॉल गिरा के देखी, कुछ पत्थर गिरा के देखे, फेदर गिरा के देखे, एंड वी ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट्स कि, और उससे कंक्लूजन में पहुंचना है कि नहीं, देयर इज समथिंग जिसकी वजह से जो ऊपर है चीज वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और उससे आगे एक्सपेरिमेंट्स किए तो न्यूटन कम टू नॉलेज कि सिर्फ अर्थ की तरह ही नहीं, टू मास ऑब्जेक्ट्स दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंट आर डन। सिमिलरली बारिश को जानने के लिए हमें पता है कि बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या है कि हम देखते हैं जब गर्मी बढ़ती है तो पानी इवेपोरेट होता है और ऊपर का हमें पता है टेम्परेचर कम है तो वहां वो बादल बन जाता है और उसके बाद वो नीचे बूंदों में गिरता है। तो वी ट्राई टू डिपिक्ट दैट एट इन क्या कहते हैं लेबोरेटरी मॉडल्स। सिमिलरली कि आप सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो पहले ये एक चलता था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। Then we start to do experiments and we found that कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं, it's the earth that is revolving around the sun, not the sun revolving around earth. So ऐसे small experiment से हम पहले small level पे experiment करते हैं, फिर उसको higher level पे करते रहते हैं, condition को change कर करके। So students, now we will take the next step, that is qualitative and quantitative reasoning. So अभी तक हमने उस नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, फिर लैब में उसको क्रिएट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। अब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वी स्टार्ट्स टू रीजन आउट, हम उन रीजंस को कि कैसे एक थ्योरी, एक आइडिया बनाने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक द क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग मीन्स कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो ऑब्जेक्ट्स हमने उसमें यूज किए, जो सब्सटेंस यूज किए, उनकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट सो लाइक सिंपल है, रेन हो रही है, रेन में हम लोग क्वालिटी देख रहे हैं, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द रीजन बिहाइंड evaporation, condensation, precipitation of a water. So इसमें we know that temperature is involved, humidity is involved, then precipitation के बाद जब बारिश नीचे गिरती है तो वो वापस फ्लो होके जाती है, तो हमने वहाँ slope is involved. So these are the qualities of, अब वाटर के इवेपोरेशन में उसका टेम्परेचर उसकी क्वालिटी है, फिर ह्यूमिडिटी एक क्वालिटी है। सिमिलरली व्हेन वी आर लुकिंग एट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ही स्टार्ट की चीजें ऊपर से नीचे गिर रही हैं, मींस अर्थ इज अट्रैक्टिंग देम, तो अर्थ की क्या क्वालिटी है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी बेस पे वी हैव डिसाइडेड कि अर्थ के पास मास है। मास, अगर ऑब्जेक्ट का जो मास है इट ट्राइज टू अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। सो इसमें हमने ये क्वालिटी के ऊपर आइडियाज और हाइपोथेसिस बनाने शुरू किए। फिर क्वेश्चन आता है कि सन के पास भी बहुत बड़ा मास है, अर्थ से ज्यादा बड़ा है, तो क्या सन भी अट्रैक्ट करता है? तो दैट्स आगे जो हमने एक्सपेरिमेंट किए वी फाउंड इट इज ट्रू, सन की अट्रैक्शन की वजह से ही अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही। तो ये जो सनराइज सनसेट है हो रहा है, ये हमारे कहते हैं कि मानसून आ रहा है, गर्मी आ रही है, हमारे सीजन्स चेंज हो रहे हैं। सो इन सब का हमें आइडिया इसी से मिल जाता है कि हमारा अर्थ, तो मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट किया, इट हेल्प इन बिल्डिंग द आइडियाज। सो हम यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपनी रीजनिंग पे कि क्या क्वालिटीज है ऑब्जेक्ट्स की या एनवायरनमेंट की जिसकी वजह से ये फिनोमिना अकर कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई हार्ड डाटा नहीं हमने यूज किया, वी आर जस्ट रीजनिंग आउट द क्वालिटेटिव।
सो यहाँ पे हमारे उसकी क्वालिटी। नाउ सिमिलरली जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किया, हमने हर तरह की बॉल के साइज लिए, मास लिए, तो वी विल कम टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ मास ऑब्जेक्ट। नाउ द सेकंड स्टेप कम, दैट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब हमने क्वालिटी से बता दिया कि उसकी क्या क्वालिटीज है, क्या है, हाउ दैट क्वालिटी मैनिपुलेट्स इन द हार्ड डाटा, कि वो उसमें कैसे चेंज हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी कम टू नो कि ऑब्जेक्ट जितने नजदीक है फोर्स उतनी ज्यादा है, और अगर डिस्टेंस दोगुना बढ़ता है तो फोर्स जो दोनों के बीच में वो 4 गुना घट जाती है, मतलब डिक्रीज 4 टाइम्स। सिमिलरली हम हर एक्सपेरिमेंट में से स्मॉल स्मॉल डाटास को कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और उसको रीजन आउट करते हैं और एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी डिपेंडेंस कितनी है, और वो एक क्वांटिटी है, मतलब एक डाटा, आपका स्टैटिस्टिकल डाटा क्रिएट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग, because this data will be in help to convince the scientific community that what you have done is not just a laboratory experiment. You have taken lot of observations and lot of data is there to justify your theory. Now the next step is mathematical modeling. Now you have done the qualitative and quantitative reasoning, so you have some data. Now you try to model it out, means आप एक फॉर्मूला बनाना चाहते हो, एक सिंपल फॉर्मूला, कि जो आपने इतनी बड़ी अपनी थ्योरी बनाई है कि हर एक नॉर्मल आदमी उसको ना समझ पाए, एक सिंपल फॉर्मूले में आप उसको अपने पूरी थ्योरी को कंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यही न्यूटन्स लॉ का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, जो न्यूटन ने इतनी बड़ी स्टडी की, एट द एंड ही फॉर्मुलेटेड द होल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इनटू अ स्मॉल फॉर्मूला दैट अ फोर्स बिटवीन टू objects of mass f1 f2 is equal to g, where g is a gravitational constant, into m1 into m2 upon r square. So this is the formula that Newton has built. So whole theory has come down to this, that, and here is the mass. So the force is dependent on mass and inversely proportional to the distance, and this is where his theory comes to a mathematical formula. So friends, the next step is theoretical prediction. अब जब आपने फाइनली एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है, मैथमेटिकल मॉडल बना लिया है, उसके बाद यू ट्राई टू प्रिडिक्ट कि जो चीजें आपने एक्सपेरिमेंट्स, अभी तक आपने लेबोरेटरी लेवल पे एक्सपेरिमेंट किए थे, नाउ जो लेबोरेटरी में आप कई चीजें नहीं कंक्लूड कर सकते, तो यू ट्राई टू प्रिडिक्ट देम। आपने एक्सपेरिमेंट्स के बाहर भी, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाहर भी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसको प्रिडिक्ट किया है। और इट इज जस्ट लाइक कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने पूरा सेपरेशन के हिसाब से, लॉन्ग डिस्टेंसेस के हिसाब से आपने उस फॉर्मूले को एक ग्राफिकली व्यू में प्रिडिक्ट भी कर दिया। जैसे सनराइज सनसेट वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि जब पूरी थ्योरी बनी तो आज हम उसको 6 महीने बाद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ अ थ्योरी, कि आप एक्सपेरिमेंट, एक लैब में एक्सपेरिमेंट करके आप नेचुरल फिनोमिना को अपने मैथमेटिकल मॉडल से प्रिडिक्ट कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाई, मॉडल बनाया, उस पर एक मैथमेटिकल उसने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया, तो क्या बाकी जो साइंटिस्ट है या बाकी जो कम्युनिटी है वो उसको इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है? कभी कभार कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग उसके डाटा के अकॉर्डिंग, जो उसने रीजनिंग दी है उसको, या जो उसने मॉडल बनाया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते। दे वांट टू वेरीफाई इट। सो हियर कम्स आवर लास्ट एंड फाइनल स्टेप, दैट इज वेरिफिकेशन और falsification of theories. And for my side this is one of the most important step. Reason is that कि आपने एक थ्योरी बना ली, उसको अब एक वन ऑफ उसने एक्सपेरिमेंट्स किया, हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट दैट केयरफुली डन, या जो उसने थ्योरी बनाई है वो किसी लिमिटेड चीज के लिए उसने ही प्रिडिक्टेड फॉर अ लार्ज डिस्टेंस, लाइक दिस एग्जांपल, उसने लार्ज डिस्टेंस के लिए एग्जांपल के लिए से प्रिडिक्ट किया, लेकिन हो सकता है ये उतने के लिए नहीं हो, आगे जाके कुछ चेंजेस आते हो। तो बट दैट हियर दैट स्टेप्स कम, कि इस स्टेप्स से जब साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और कुछ साइंटिस्ट उसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, तो दैट मेक थ्योरी मोर
स्ट्रॉन्ग, अगर उसको कोई फॉल्स, जब तक उसको फॉल्सिफिकेशन नहीं होता तब तक वो थ्योरी सस्टेन करती है, और जितनी बार उसको वेरीफाई करते हैं वो थ्योरी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो अगर हम काफी एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारी थ्योरियां जो है वो फॉल्स भी साबित हुई हैं, और बाद में उनमें चेंजेस होते रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, कि साइंस इज डायनामिक, और दिस लास्ट स्टेप मेक इट्स अ डायनामिक, कि आपने थ्योरी प्रिडिक्ट होने के बाद भी पीपल या साइंटिस्ट आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट just as they try to verify it, they try to do more experiments, and that is how science evolves. So now again come to the science. तो अब हमने साइंस को क्या किया, साइंस जो हम नेचुरल फिनोमिना को पढ़ रहे हैं तो हमने उनको क्या किया, उन फिनोमिना को डिवाइड कर दिया और साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी है, लाइक केमिस्ट्री जो केमिकल्स पे है, फिजिक्स जो नेचुरल फिजिकल फिनोमिना जो हमें दिखाई दे रहे हैं उन पे, बायोलॉजी जो हमारे ह्यूमन के अंदर हो रहे हैं, सिमिलरली अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, और उसके बाद व्हाट वी हैव डन, हमने केमिस्ट्री को भी आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स को भी डिवाइड कर दिया। इस डिवाइड करने का रीजन है कि हर साइंटिस्ट को पूरी साइंस नहीं पढ़नी, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे मोर कंसंट्रेट कर सकता है। तो जैसे जैसे आप स्टार्ट में, हम जब क्लासेस में होते हैं 8 9 तो हम साइंस ही पढ़ते हैं, जब जैसे आप 11th में आते हैं आपकी फिजिक्स की अलग बुक हो गई, अलग सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गई, बायोलॉजी अलग हो गई। अब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप पाओगे कि आप ऑनर्स कर रहे हो तो फिजिक्स की भी बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तो जिस टॉपिक को आपने फिजिक्स के एक पढ़ा था वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 टॉपिक हो गए, और उस टॉपिक्स के भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जाके उस मतलब एक सब टॉपिक के भी सब टॉपिक एक स्मॉल पार्ट पे आप रिसर्च करते हो। तो दिस इज हाउ साइंस बिल्ड अप। दैट्स व्हाई आई सेड कि फिजिक्स भी एक नहीं है, उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि हम बहुत चीजें हमने पढ़नी है, हमने एटम्स को भी पढ़ना है, साउंड क्यों जनरेट हो रही है, हीट हो रही है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है, इनर्शिया, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम उन सबको पढ़ रहे हैं। आपके जितने भी आप यहाँ पे एक एक चैप्टर पढ़ोगे अपनी फिजिक्स में, दीज आर सब टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, आगे जाके ये एक सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक सब्जेक्ट बन जाता है, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, तो दीज आर सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। So now we have come to our main topic, that is physics. अब हम फिजिक्स में हमारे जो सोचने की क्षमता है या उसको उन नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने की या मोर सिंप्लीफाइड करने की जो हमारी वो तरकीबें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेनली जब भी हम फिजिक्स में बेसिक लॉ या उनको मैनिफेस्टेशन को करना चाहते हैं नेचुरल फिनोमिना को, so we are taking two main thrusts. So two principal thrusts in physics that are namely unification and second is reduction. So now I will explain you one by one what is unification and what is reduction and how they are important in physics. So first of all unification. Unification जैसे आप वर्ड से ही समझ रहे हो कि यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाइड कर लेना, बहुत सारी चीजों को एक जगह पे ले आना, या हम इसको दूसरी तरीके से बोलें कि एक चीज से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना। एक्चुअली दिस इज व्हाट यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, कि हम हर चीज के लिए एक अलग लॉ बनाएंगे, हर चीज के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम बहुत सारी चीजों को किसी एक ही लॉ या एक ही कॉन्सेप्ट से कैसे एक्सप्लेन कर पाए। सो वी कैन से दैट in physics we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. So हम एक ही लॉ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो काफी सारे कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देगा, अभी तक कोशिश उसी तरफ है, लेकिन बट वी से कि हम एटलीस्ट एक सब टॉपिक में एक ही लॉ से उसके काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, एंड इसमें काफी मेहनत हो रही है। So to see physical world as manifestation of some universal law in different domains and conditions. So एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए ग्रेविटेशनल गिवन बाय न्यूटन। जब ग्रेविटेशन न्यूटन ने दी तो उसने स्टार्टिंग की कहां से की थी कि एक पेड़ से एक सेब गिरा, और हम लोग अर्थ और पे गिरने वाले ऑब्जेक्ट तक थे, लेकिन धीरे धीरे उसी फिनोमिना से, उसी कॉन्सेप्ट से हमने मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमने उस लॉ से एक्सप्लेन कर दी। अलग अलग लॉ ना बना के हमने एक सिंगल लॉ के मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। दिस मेक द फिजिक्स मोर इजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। सिमिलरली जो एक कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एक रेवोल्यूशन, दैट इज द मैक्सवेल इक्वेशन,
आप जब इलेक्ट्रिसिटी को आगे पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे, तो यू फाइंड कि एक चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बहुत सारे लॉज पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें, और जब आप उन सबको पढ़ के यू रीच टू द मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इक्वेशन आप उन पे पहुंचोगे, तो यू विल फाइंड कि मैक्सवेल की एक सिंगल इक्वेशन पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन कर पाती है, सेकंड इक्वेशन उसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन कर पाती है। दिस इज हाउ थिंग्स आर मेड सिंपलर, कि आप कि at the end you will find a single equation is able to explain lot of concepts of electricity. The attempt to, so we can finally say that the attempt to unify the laws is the main quest for unification, and one of the biggest example is fundamental forces, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमने यूनिवर्स में इतनी सारी फोर्सेस हैं, हमने उनको मेनली 4 फोर्सेस में डिवाइड कर दिया और बाकी सबको हम डराइव्ड फोर्स कहते हैं, कि मींस यहाँ भी हमने उसको यूनिफाइड कर दिया, एंड शायद आगे जाके ये 4 फोर्सेस भी और भी यूनिफाइड कर दी जाएं। सो दिस इज हाउ यूनिफिकेशन वर्क्स, इट्स मेक्स द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट मोर सिंपलर because he has to learn lesser concept and laws. Now the second word is reduction. So अब reduction word अभी तक हम कह रहे थे कि unified करो, now second comes word come reduction, मतलब हमने reduce करना, इसको small parts में reduce करना। This is different. First हमने unification की laws की, कि एक law से हम पूरे को explain कर पाए। Now reduction means हम किसी complex part को study करने जा रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंट पार्ट है कि हम किसी चीज को जब स्टडी करने जाने, वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, फिनोमिना होता है। अब उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को हम बाहर से स्टडी करेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे, इट इज मोर डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, उस फिनोमिना को ब्रेक कर लेते हैं। वहां पे हम लॉ को यूनिफाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम एक जो प्रोसेस है या एक मैकेनिज्म है, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं स्मॉल पार्ट्स में, और फिर उनको सिंगली स्टडी करेंगे। सो a related effort is to derive the properties of bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts. This approach is called reductionism and it is at the heart of physics. क्योंकि किसी भी एक बड़े कॉम्प्लेक्स को समझना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हम एक उसके पार्ट को समझेंगे, इट इज मोर इजी। फॉर एग्जाम्पल हम एक कार है, कार को आप बाहर से देखोगे बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको स्टडी जाओगे, पूरी कार को एक साथ स्टडी करोगे, तो इट विल डिफिकल्ट। अगर हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके इंजन को अलग निकाल लेते हैं, उसके टायर्स की आर्किटेक्चर को अलग निकालते हैं, कार की डिजाइनिंग को अलग कर देते हैं, उसके फ्यूल के पार्ट को अलग कर लेते हैं, और उन सबको एक अलग अलग तरह से स्टडी करते हैं, देन इट विल मेक मोर इजियर। हम इंजन तक को हम लोग आगे ब्रेक करके पढ़ते हैं। जब आप बीटेक वगैरह करोगे, तो यू विल फाइंड कि उसके भी आप स्मॉल पार्ट्स करके जब उस स्मॉल पार्ट को स्टडी करते हो, दैट इट विल बी मोर इजियर। एज एन एग्जांपल आई विल टेल यू कि आपने अपनी क्लास मिक्स कर दी, उस क्लास में काफी सारे 15-20 बच्चे आप योर फ्रेंड्स हैं, अब आपको उस क्लास में क्या हुआ ये जानना है। अब आप क्या करोगे, क्या 15-20 अपने सभी फ्रेंड्स को एक साथ बुला के सबसे पूछने लगोगे, या आप अपने किसी एक अच्छे फ्रेंड को जिसको ज्यादा नॉलेज होगी, आप उसको बुलाओगे और उससे सारी चीजों की नॉलेज ले लोगे, और उसी को आप मान लोगे कि हाँ, दिस हैज हैपेंड इन द class. So I will let's explain with some of the example. For example, the subject of thermodynamics deal with the bulk systems in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy and entropy. Means thermodynamics की जब हम बाहर से देखते हैं, तो it is dealing complete picture, बड़े बड़े substance को देख रहा है। Now what we have come to next step, that is kinetic theory and statistical mechanics. उसमें हमने क्या किया, वो जो बड़ा substance था उसको पूरा ना स्टडी करके हम उसके अंदर चले गए, उसके एक मॉलिक्यूल को स्टडी करने लग गए, और ये हमने मान लिया कि हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर लेते हैं, तो बाकी जो उसके मॉलिक्यूल है सब वैसा ही बिहेव करेंगे, और तो जो पूरा सिस्टम है वो भी उसी तरह नियरली बिहेव करेगा। उसमें हम काफी सारे टॉपिक्स है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने जैसे वो मॉलिक्यूल को स्टडी किया तो पूरा सिस्टम 100% वैसा ही, बट वी हैव कम टू अ नियर अ पिक्चर। तो इसी प्रोसेस में हमने जब रिडक्शन किया, तो हमने टेम्परेचर को भी रिलेटेड पाया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम। मींस टेम्परेचर भी हमारा बेसिक एलिमेंट ना हो, कि हम जो उसकी एनर्जी है हमने उसको मॉलिक्यूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से मैच कर लिया, रिलेट कर लिया। ये सब चीजें आप आगे जब थर्मोडायनेमिक्स में भी हायर लेवल में पढ़ोगे तो पाओगे। तो बट यहाँ पे जो समझाने का मेन मतलब है कि रिडक्शन क्या था, कि एक बड़ा सिस्टम लिया, उसको पूरी सिस्टम को इकट्ठा ना पड़ गया, आपने उस सिस्टम के अंदर चले गए, एक छोटा सा मॉलिक्यूल उठाया, उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, जो कि आसान था, एंड वी हैव ट्राई टू क्रिएट द थ्योरी फॉर होल सिस्टम।
नाउ ओ हमने यूनिफिकेशन टू ट्रस्ट पढ़े। अब फिजिक्स को भी, फिजिक्स हमारी बहुत बढ़िया, मैंने आपको इतना सिखाया कितने सारी चीजें हैं। अब हमने क्या किया, उस फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सो दीज आर, फर्स्ट इज मैक्रोस्कोप, मतलब includes phenomena at laboratory, terrestrial, astronomical scales, बड़े बड़े चीजें। मैक्रो मीन्स बड़ा। नाउ द सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर लेवल। तो अगर आप इसको एक मोटा मोटा या बाहर से समझने की कोशिश करेंगे तो मैक्रो मीन्स जिसे आप देख पा रहे हैं, और माइक्रो मीन्स जो जिसको आप नहीं देख पा रहे, जो इतना छोटा है कि आप उसको अपने ओपन नॉर्मल उससे नहीं देख पा रहे, आपको उसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, दैट इज। लेकिन अब माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, यहाँ पे आप टेलीस्कोप मत ले लेना कि भाई हमें तो चांद तारे भी छोटे दिखाते हैं, एक्चुअली दे आर बिग, वो दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मीन्स विच आर वेरी स्मॉल, माइन्यूट, 10⁻⁻⁸, -7, दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो इस पे इन दो चीजों पे डील करते हुए हमने फिजिक्स को दो पार्ट दिया है, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स दैट डील विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, mechanics, and the second is quantum theory that deals with the microscopic phenomena. So here this is just a diagram to show कि हम फिजिक्स में कितने स्मॉल पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, 10 इवन आप आगे जाके पढ़ोगे कि हम प्रोटॉन से भी स्मॉल पार्टिकल्स पे चले गए, जिन्हें क्वार्ट्स कहते हैं, जो जिनका प्रोटॉन आर मेड अप ऑफ, तो उससे भी स्मॉल, टू as large as a universe, that is 10⁻27 meters. So you are seeing how difference is there. Though this is just to explain that how physics is vast. Like this, यहाँ पे जो साइज जिस तरह से चेंज हो रहा है, उसी तरह से फिजिक्स का डोमेन भी इतना बड़ा है। इट इज एज स्मॉल एज टू एज लार्ज एज। सो नाउ द टॉपिक कम्स हाइपोथेसिस, एक्सियोम एंड मॉडल। सो जब हम पढ़ा रहे थे आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एग्जाम, तो वहां पे हम बता रहे थे जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करनी होती है तो आप क्वालिटी को पढ़ के कुछ एक आइडियाज, एक हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप उसको डाटा के ऊपर जाते हो। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। One should not think that everything can be proved with physics and mathematics. So हम जैसे हमने एक आइडिया बनाया, उसके बाद हम हर चीज का हमारे पास डाटा नहीं है कि हम उसको क्वांटिटेटिवली उस चीज को पेपर पे ला सके, दैट इज देयर। All physics and also mathematics is based on assumption, each of which is variously called a hypothesis or axiom. So here hypothesis is a supposition without assuming that it is true. मीन्स हमने कुछ चीज अज्यूम कर ली है, बट हम ये नहीं कह रहे दिस इज आई नो कि ये ट्रू है, बट आई अज्यूम दिस। अब उसका बात है इट कि उसको आप प्रूफ कर, प्रूफ इट इज नॉट इजी टू प्रूफ बट यू कैन वेरीफाई। अब उस हाइपोथेसिस को आप मैथमेटिकली डेराइव करके प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई कर सकते हो। दिस इज द सेम विद द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, इट इज, आप कहीं भी आप कोई बेसिक आप मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं पाओगे कि जीएमएम आप उससे निकाल दो, लेकिन एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से हमने फाइंड किया है कि जो न्यूटन ने फॉर्मूला निकाला था दैट इज करेक्ट। उसकी जो हाइपोथेसिस था, उसका जो आइडिया था, उसका जो मॉडल था, इट इज करेक्ट। Axiom is a self-evident truth while a model is a theory purposed to explain observed phenomena. मतलब तो आपने एक चीज को प्रूव कर लिया कि ये है, इट इज ट्रू, उसके बाद आप एक थ्योरी बनाओगे, एक मॉडल बनाओगे कि जो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगी। दिस इज हाउ आप जब आगे जाओगे पीएचडी वगैरह करोगे तो आप रिसर्च पेपर्स को इसी तरह लिखा जाता है, आपको ये सब चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करनी होती है। लेकिन अब जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो आपको स्ट्रेट अवे बता दिए जाएंगे कि इनका कोई प्रूफ नहीं है, बहुत सारी चीजों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज डिफरेंट है कि कुछ चीजें हम प्रूव नहीं कर सकते तो उसको हमें हाइपोथेसिस या उस एक्सियम्स को हमें मानना ही पड़ता है। ये आपने काफी मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा, जब आप ज्योमेट्री की थ्योरम्स पढ़ते हो तो वहां पे कुछ एक्सियम्स होते हैं जो स्ट्रेट अवे आपको कह दिया जाता है कि हाँ, दो पैरेलल लाइन है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो वो एक्सियम आपको याद करना है और वो एक्सपेरिमेंटली आप उसे प्रूव कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं जो आप लोग पढ़ते हो, जो आप साइंस इवन फिजिक्स में भी आपके आगे आगे आएंगे। अब फिजिक्स जो है, इट्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये तीनों एक कहते हैं ना एक सूत्र में बंधे। आज फिजिक्स से ही अब जो अब हम कहते हैं हम टेक्निकली बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन उसका बेस फिजिक्स की वो रिसर्च ही होती है। आपने ट्रेन बनाई तो ट्रेन बनाने से पहले वो जो इंजन बनाया, इंजन से पहले उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो फिजिक्स से है। सिमिलरली बल्ब का बनाना, गाड़ी का बनाना, या आगे हम जो सब रिसर्च करें तो उनका जो बेस होता है दैट इज
आपकी साइंस जो आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए, उसी के बेस पे वो टेक्निकल मॉडल डेवलप होते हैं। So students, here our lecture is been completed. Thank you for listening my video, and please subscribe my channel and also share my video and subscribe the channel by clicking the bell button. Again, thank you students.